Good morning, students. Today we are going to discuss some exercises problem. Okay. So today we take problems from exercise 6.2. So here first problem is in figure A. So this is the A figure. D parallel BC. So this line D is parallel to BC. Okay, and find BC. So we know. Suppose this is the figure of this B line is parallel to BC, and it is given that AD is 1.5 centimeter, this is 1 centimeter, 3 centimeter, and we have to find EC. Okay. Then we know in triangle, if any triangle, if a line drawn parallel to third side of a triangle which intersect other two sides into distinct point, then these two lines divided in the same ratio. It means if B parallel to BC, then AD upon DB is equal to AE upon AC. Why it is? Because by DPT theorem. Okay, so we just put the value in this equation. So AD is 1.5, BD is 3, A is 1, and EC we have to find. Okay, so just do the cross multiplication. So 1.5 into F is equal to 3 into 1. So X is equal to 3 upon 1.5. That is 30 upon 15. So X is equal to 2 centimeter. So this is our answer. Okay. So this is the first problem solution. Now see the second problem. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. Okay, so there is one triangle PQR and E and F are the points on the side PQ and PR. So suppose there is point E and F. Okay, if we join this line EF, then find whether EF parallel QR. So we have to find EF is parallel to QR or not. Okay. Now in this problem, one condition is given on the textbook that. So in this problem, suppose PQR is a triangle and EF is, we have to prove EF is parallel to QR, and it is given P is 3.9 centimeter, EQ is 3 centimeter, PF is 3.6 centimeter, and FR is 2.4 centimeter. So we know that if in any triangle, if a line parallel to the third side of a triangle which intersect other two sides in two distinct points, then these two sides divided in the same ratio. और हमने इसका कन्वर्स भी देखा था, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम. अगर ये रेशियो इक्वल है तो जो लाइन डिवाइड कर रही है दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. दैट इज कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी कन्वर्स डीपीटी थ्योरम. ओके, तो ध्यान में रखिए ये लाइन अगर इसको पैरेलल है तो इन दो साइड का रेशियो इक्वल होगा, और इन दो साइड का रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसको पैरेलल है. तो वी हैव टू प्रूव EF parallel to QR. It means we have to show the ratio of this side and ratio of this side equal. Okay. So here PE upon EQ is equal to 3.9 upon 3. So it is 1.3 centimeter ratio. 1.3. Now next ratio is PF upon EFR. So it is 3.6 upon 2.4. So it is 1.5. Now you see,
here ratios are P upon EQ is not equal to PF upon EFR. ये दोनों रेशियो आपको इक्वल नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, अगर ये पार्ट्स और ये पार्ट्स का रेशियो इक्वल है ये पार्ट्स और ये पार्ट के रेशियो से, तो ये लाइन इसको पैरेलल होगी। लेकिन यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं है। इट मींस therefore EF is not parallel to QR. EF is not parallel to QR. हमें क्वेश्चन में पूछा है state whether EF is parallel to QR or not. तो answer is no. Okay? So EF is not parallel to QR because the ratios are not same. So this is the second problem. Now see the third problem in figure B. So here figure is B. Just right here. So it is ABC. D, F, E. Okay. So D is parallel to AC. We are given DE is parallel to AC. It is given, and also DF parallel to E. Okay. Then we have to prove BF upon FE is equal to B upon EC. ओके, तो यहाँ पे आपको ये दो लाइन पैरेलल दी है और आपको प्रूव करना है कि रेशियो इक्वल। सो इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम। सो इन दिस सी डी पैरेलल एसी, ये जो पार्ट है डी लाइन एसी को पैरेलल है, वो किस ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व करते हैं। देखो दिस इज डी लाइन एंड दिस इज एसी लाइन। तो डी लाइन एसी लाइन को पैरेलल है किस ट्रायंगल में, एबीसी। ओके, सो इन ट्रायंगल एबीसी आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है पहले। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी डी लाइन पैरेलल टू एसी। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन अगर पैरेलल है दूसरे साइड को, तो ये लाइन जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है उनका पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये लाइन इसको पैरेलल है, तो मतलब एबीसी ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व करो ये पार्ट बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीए। ओके, सो इट इज बाय बीपीटी थ्योरम। So this is our first equation. अब सेकंड जो दिया है DF पैरेलल, DF ये लाइन देखिए, DF पैरेलल A, ये तो किस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है, ABE। तो इन ट्रायंगल ABE आपको दिया है DF पैरेलल ABE। इस ट्रायंगल में DF पैरेलल A है, तो सेम बाय बीपीटी थ्योरम क्या होगा, BF पैरेलल F, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DE। ओके, दिस इज आल्सो बाय बीपीटी थ्योरम। Okay, this is equation number 2. Now you observe from equation 1 and 2 आपको ये दिखेगा कि BD upon DE ये जो पार्ट है दोनों में सेम। तो एक साइड अगर इक्वल है तो ऑटोमेटिक सेकंड साइड इज आल्सो इक्वल। सो फ्रॉम 1
F अपॉन एफ ई, ये साइड का ये इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, ओके। तो यही हमें प्रूव करना है, बीएफ अपॉन एपी इज इक्वल टू बी अपॉन ईसी, ओके। तो हमने क्या किया, पहले डी पैरेलल एसी दिया है, तो ये ट्रायंगल कंसीडर किया एबीसी, डी पैरेलल एसी जिसमें है, उसको बाकी पीटी थ्योरम लिखा हमने, बी अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीडी अपॉन डी। फिर डीएफ पैरेलल ए हमने देखा किस ट्रायंगल में है, सो इट इज इन एबी, so BF upon FE is equal to BD upon DA. So from equation 1 and 2 we get BF upon FE is equal to B upon EC. Okay, this is by basic proportionality theorem. Now you see last problem, that is fourth. In figure C, that is C figure here, ABC are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ, AC parallel PR and show that BC parallel QR. So first we draw the figure. So see, it is ABC. Okay. तो हमें प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या दिया है उसको देखो, ए बी पैरेलल पी क्यू ये पार्ट दिया है, उसके बाद ए सी पैरेलल पी आर दिया, और यह टू शो बी सी पैरेलल क्यू आर, यह हमें लिखना है, ओके। तो सबसे पहले जो दिया है उसका इसको ए बी पैरेलल पी क्यू, ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल PQ, ये किस ट्रायंगल में आपको दिया, AB पैरेलल PQ, दिस ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, POQ। सो इन ट्रायंगल POQ AB पैरेलल PQ, तो इस ट्रायंगल में दो साइड अगर पैरेलल है तो इसका मतलब इन दो साइड का रेशियो इक्वल होगा, दैट इज OB अपॉन BQ is equal to OA upon AB. Okay, this is by converse BPT theorem. So this is number one equation. Now second part हमें क्या दिया, AC parallel PR, AC parallel PR, identify the triangle AC PR, तो कौन सा ट्रायंगल है, POR। सो इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR AC पैरेलल PR ये दिया है, तो बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम लाइन अगर ये लाइन अगर इसको पैरेलल है तो इनका रेशियो सेम होगा, दैट इज OC अपॉन CR इज इक्वल टू AO अपॉन AP, converse BPT theorem. This is number 2. Now observe first and second equation. First और second equation ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्या दिख रहा है, AO अपॉन AP, और यहाँ पे भी AO अपॉन AP, तो सेकंड पार्ट इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 we get OB upon BQ is equal to OC upon CM। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन से हमें ये पार्ट मिला, OB upon BQ is equal to OC upon CR। तो ये किस ट्रायंगल में है आपको ऑब्जर्व करना है सबसे पहले, तो यहाँ पे देखो OB upon BQ, C OB upon BQ, OC upon CR, ये तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट अपॉन ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट अपॉन ये पार्ट किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाला OQR। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल OQR, ध्यान से देखो OQR
तो इस ट्रायंगल में ये पार्ट अपॉन ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट अपॉन ये पार्ट। सो बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम टू साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी। तो ये मतलब देयरफॉर BC पैरेलल टू व्हाट QR, BC पैरेलल टू QR। ओके, सो बाय दिस कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, converse BPT theorem. Okay, so this is the solution. So we have to show BC parallel to QR. Okay, तो यहाँ पे आपको सिंपल ध्यान में रखना है हर प्रॉब्लम में कि अगर आपको रेशियो इक्वल दिया है और पैरेलल दिखाना है दो साइड, तो आपको देखना है किस ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो इक्वल दिया है और कौन सी साइड इसको पैरेलल है। तो यूज करना है कन्वर्स बीपीटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। कभी कभी किसी प्रॉब्लम में आपको पैरेलल नहीं होते, रेशियो इक्वल दिखाना है, तो वही सेम आपको देखना है कि किस ट्रायंगल में कौन सी लाइन किस साइड को पैरेलल है, तो वो दो साइड का रेशियो इक्वल है। ओके, अब ये रेशियो कभी कभी अल्टरनेट में यूज कर सकते हैं आप, जैसे OB अपॉन BQ है इज इक्वल टू OC अपॉन, तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। ये रेशियो आप इस तरह भी लिख सकते हैं OB अपॉन OC यहां जाएगा इज इक्वल टू PQ अपॉन CR। ओके, एंड हमेशा ध्यान में रखना है, अब मैं यहां पे एक चीज बताने जा रहा हूं आपको कि किसी भी ट्रायंगल में बाय बीपीटी थ्योरम ये लाइन अगर इसको पैरेलल है तो रेशियो इसका मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ऐसा ही नहीं, रेशियो कैसा भी इक्वल हो सकता है। तो दैट इज सपोज ABC is triangle and PQ is parallel to BC, then AB upon PB, AB upon PB is equal to AC upon QC, ये भी हो सकता है। then AP upon AB, then AQ upon AC, किस तरह भी आप रेशियो ले सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। थैंक यू।